and it is a kind of unexpected thing for me too. Yesterday evening, I received this WhatsApp message. Then afterwards, because of some reason, I missed the message. But after some time, I found our guest of today in my quarters. And it was a coincidence. And the moment he started talking about his mission, I became very much deeply involved and inspired. Dear children, the special guest today is with us is Sri Jagadish Deshmukh and JNV Jalgaon students. JNV Jalgaon, it is in Maharashtra. He studied class 10th as well as in 12th in that school. He was the school topper in class 10 and school class 2nd topper in class 12. He completed his engineering degree from a reputed university in Pune. Afterwards, he served 8 years as an associate professor in engineering college. And afterwards, with the permission of his parents, with the blessing of his parents, and inspired by the messages what he listened from so many elders, he he opted the way of serving the people. He says that the moment I entered into the DMV, I noticed come to learn, go to serve. Serve in the sense there are so many options. This is the path I have chosen to serve my people. He is traveling to various places. Already he completed visit of so many schools. Interesting thing is that today his visit is to 50th school. 50. Today he will be completing 50 schools. Nowadays schools. In JNV alone. Only in JNV. He traveled on his own and whatever the things available, he satisfies himself, whether travel by bus or walk or whatever the food available. Yesterday evening also I offered some fruits. He told that he is observing fasting. In such a highly qualified person, after a kind of a path of religious wisdom, it rarely happens. And when I was talking with him, I came to know that one more Navodaya student who studied here also associated in this way. He is also a kind of a spiritual ambassador, spreading good values among the people and to live comfortably, peacefully, with the kind of a spiritual and with the kind of understanding with each other. And as far as my knowledge goes, I know 4 people, but Sri Deshmukh ji says that he knows near about 100 people from Navodaya serving the country through the spiritual mode. And recently, he also got the chance to attend a kind of alumni program sponsored arranged by NVS Pune. That time in Pune, Pune region, I was there for about 5 years. Many IAS officers from Navodaya are from Pune region. And among these so many IAS, IPS and IIT and others, he was the one
on the day. It was also one among them. Everybody became inspired. Serving the nation, serving the people, there are so many ways. It is not necessary that one has to be choose white collar job. Not like that. This is a saffron dress. It's a highly valuable, highly respected, and I feel very happy that Sri Jagdish Deshmukh ji got the chance to inspire the people or spread the message of good values. And today he is with us, and he will be talking with you for about some time. I request all of you, please sit down now. During my interaction with him, I found most of the time he did not talk about the mission in which he is a member, but he talked about Navodaya and Navodaya students. How to make the student to understand the current present values. He is an experienced person in the field of education, qualified with very good merit, worked as a professor. That means he is not ordinary thing. And his message is very, very simple. He uses very simple language, easy for understanding, and he is not talking very hi-fi words. In such a manner, he become easily adapted, accepted by everyone. So on behalf of Navodaya Hasan family, I offer my heartiest thanks to Sri Deshmukh ji for choosing our Vidyalaya for his visit, and that's also one of the important occasions in his memory. 50th school. On birthday, on a birthday I came. Yesterday, a coincidence. It was his birthday, and after his parents' wish, then he asked me to bless. So this is a blessed person seeking blessing from an unknown new person. It's a strange incident. But this incident happens when the things move in positive direction. So that only, dear children, all the time I say, be positive. Think something constructively good for you and good for the society. The way the path is what he has chosen. It is not an easy task. We will be having so many hardships, so many. It is not such a simple thing, wearing this saffron dress and observing fasting and reciting the mantras. It's not so easy. One has to deeply understand the questions of our literature. He is an ardent follower of Bhagavad Gita, the messages of Bhagavad Gita, and from that he will be, on the topic of Bhagavad Gita, he will be talking with you. Short time. I request Sri Deshmukh ji to bless our children and also inspire them with your valuable words. Thank you. Thank you, sir, for allowing me to be here for one day in Jawahar Navodaya Vidyalaya Mavin Kere
Hassan, district of Karnataka. I'm happy to be here amongst you today morning. Wish you all good morning. Thank you. आप हिंदी समझते हैं अच्छे से? देश भाषा? धन्यवाद। क्योंकि मन की बात, दिल की बात या आत्मा की बात अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो हिंदी बोलता हूँ। इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं। आपके बीच में जो अपने लोग हैं, अपना जो बहुत लोग पूछते हैं, सर आपको ऐसे नई जगह पर नया नहीं लगता? न्यू प्लेस। मेरे माता पिता कल मुझे पूछे थे, बोले थे साउथ कर्नाटका जहाँ अपनी भाषा नहीं है, अपना कोई लोग नहीं है, गांव वाले, अपना भोजन नहीं वहाँ पे, वहाँ कुछ अच्छा आपको अजीब नहीं लगता? मैं बोला कि लोग नए होते हैं लेकिन नया नहीं लगता। क्यों? अपने हैं, उनको अपना मानता हूँ, अपना समझता हूँ, इसलिए मुझे आनंद आता है। दिखने में नहीं लगते न्यू फेसेस, लेकिन जब अपने हैं तो उनको मिलने में आनंद आता है। जैसे नई जगह लगती है, वो नया जगह, न्यू प्लेस, लेकिन यदि अपना होगा तो वहाँ पे आनंद आएगा आपको। तो द कंसेप्ट वसुदैव कुटुंबकम इज अवर इंस्पिरेशन, ये अपना प्रेरणा है। केवल मनुष्य समाज नहीं, केवल एक अपना कर्नाटक राज्य नहीं, केवल एक देश नहीं, भारत, द होल प्लैनेट, संपूर्ण पृथ्वी अपनी फैमिली है, अपना परिवार है। ब्रॉड कंसेप्ट ये हमने नवोदय से ही अपनाया था। जब हम 500 बच्चों के बीच में 5 साल बिताए, 6ठी से 10वीं तक नवोदय विद्यालय जलगांव में, तो हमें सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का अभ्यास हो गया था। सोशल लाइफ कि सभी अपने हैं और हम सबके हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। इसलिए मुझे बीटेक के बाद या जॉब के बाद समय शादी का विचार नहीं था। तो बचपन से आ गया था कि हमें सबका बनना है, सबके लिए जीना है। तो 2-3 लोगों में दुनिया समझना, अपना दुनिया, और बस उसमें ही जीना मुझे असंभव था। तो अपने माता पिता को मैंने समझाया, बताया कि ये बात नहीं कि मुझे शादी का मतलब ये आपकी बात नहीं सुननी है, लेकिन मैं जी नहीं पाऊँगा 2-3 लोगों में, मुझे सबके लिए जीना है, सबका बनना है। और ये विचार इस्कॉन से नहीं आया, नवोदय से पहले आ गया था। तो ये मैं अपना जीवन का कामयाबी समझता हूँ या भाग्य समझता हूँ कि नवोदय ने मुझे केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, जीवन को भी समझाया। हम बहुत जगह बोलते हैं कि नवोदय में जो टीचर्स मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं हमें, वो सबसे बड़ा भाग्य है अपना। ऐसे टीचर्स ना हमें पहले मिले, नवोदय के पहले या नवोदय के बाद में मिले, जो हमें 24 घंटे ध्यान देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। आज के समाज में जो माता पिता है वो इतने व्यस्त है, इतने बिजी है कि अपने 1-2 बच्चों के लिए भी समय दे नहीं पाते। बच्चों ने खाना खाया या बच्चे स्कूल में गए, बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, नहीं चल रहा है, माता पिता को समय नहीं है देखने के लिए, क्योंकि जॉब है, ड्यूटी है, अपना बिजनेस है, उनका दुकान है। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे आपके लिए, हम सबके लिए ये शिक्षक सदैव उपलब्ध होते हैं। 2-3 शिक्षक कभी बाहर गए भी होंगे, लेकिन बाकी हमेशा होते हैं यहाँ पे, जो ध्यान देते हैं बच्चों ने भोजन खाया नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं किया, उनका तबीयत ठीक है नहीं ठीक है। किसी बच्चे को कुछ तकलीफ होती है स्वास्थ्य के लिए, आधे घंटे में क्या 10 मिनट में उसकी व्यवस्था हो जाती है। ही गेट्स मेडिकल हेल्प इन 10 मिनट्स। तो ये अपना सौभाग्य है, इसको समझिए। और ये समय जो है नवोदय का, हमेशा के लिए आपके पास नहीं होगा। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए। आई पास आउट इन 1998, 10th क्लास। 25 साल के बाद भी हमें नवोदय में आने की इच्छा होती है, जाने की इच्छा होती है। क्यों? तो केवल अपना होम टाउन नहीं, जलगांव, आज तो मुझे पूरे देश की जो 670 के आसपास नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ जाने का इच्छा है, निश्चय है कि जो हमने पाया, जो हमने
लिया नवोदय से, जो हमको दिया गया, उसकी महानता, उसका सौभाग्य थोड़ा सबको बताए, अनुभव सबको बताए। और ये सौभाग्य हम समझे, ये अपना अधिकार नहीं है कि केवल एक एग्ज़ाम देकर 5th क्लास में हमें सब कुछ मिले, ये अपना अधिकार नहीं है, ये अपना सौभाग्य है कि हमें देश समाज दे रहा है, ये व्यवस्था बनाई गई है अपने लिए कि अपना जीवन महान बने, अच्छा बने। जीवन की महानता केवल अंकों में नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में, कोई कॉन्टेस्ट में कितने अंक आए, कितने परसेंटेज आए, वो एक छोटा भाग है। अपने जीवन की महानता बनती है हम जो कुछ पाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है। नवोदय विद्यालय समिति का विचार बहुत स्पष्ट है कि बच्चों ने स्कूल में आना है, विद्यालय में आना है अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छा कुछ सीखने के लिए, अच्छा कुछ बनने के लिए, पाने के लिए। अंक सबको मिलेंगे ऐसा कोई बात नहीं है, अंक मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, पोजीशन फर्स्ट सेकंड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट है, कुछ अच्छा सीखना इम्पोर्टेंट है, और सबके लिए समान रूप से मौका, अवसर उपलब्ध है, समान रूप से। नोबडी इज बैन और नोबडी इज स्टॉप, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, सबके लिए खुला अवसर है कि सभी आप अपने क्षमता अनुसार, आप अपनी योग्यता अनुसार, इच्छा अनुसार अच्छा अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। या आर्ट्स के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक और एकेडमिक्स तो ही। तो आपको जो जहाँ आपका अच्छा कला क्या बोलेंगे, बुद्धिमत्ता चलती है, बुद्धि चलती है, जहाँ आपका मन को प्रेरणा मिलती है, वो फील्ड आप लेकर अच्छा बनकर, केवल पैसे कमाना है ऐसा विचार न बनाते हुए देश के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान देना है, कुछ सेवा देनी है, ये विचार आपको बहुत मोटिवेशन देगा। बहुत समय कॉलेज में बच्चे पूछते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें कंसंट्रेशन नहीं होती है ना, मन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत गलत जगह पे या अनावश्यक जगह पे जाता है, मन एक जगह नहीं होता है। तो हमने ये पाया है कि यदि केवल एग्ज़ाम का सोचोगे, एग्ज़ाम, पोजीशन, मार्क्स, परसेंटेज, तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब ज्ञान लेने का सोचोगे, ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो वहाँ मन लगना आसान होता है, क्योंकि रिजल्ट, पोजीशन ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनसर्टन होता है। किसको कितने अंक आएंगे, कौन सा पोजीशन मिलेगा, ये कोई जानता नहीं है, ये अनिश्चित होता है। इसलिए वहाँ पे फिर चिंता होती है, भय होता है। लेकिन जब ज्ञान लेने की बात है, जब कुछ समझने की बात है, सीखने की बात है, तो हमें वो भय नहीं होगा, ना चिंता होगी, ना कोई टेंशन होगी, हमें आनंद होगा, उत्साह होगा। क्यों? मौका है अच्छा सीखने का, अच्छा बनने का। तो एक चीज़ है कि ज्ञान लेने की बात, कम टू लर्न, समिति में पहले बोले कम टू लर्न, और नॉट जस्ट कमिंग टू लर्न फॉर अर्निंग मनी, बट गिविंग सम valuable service, contribution to society is the highest motivation one can have in life. Simple words, come to learn, go to serve, but if you think about this, will give you the highest motivation, not just for school time, all time in life. कि सेवा, अपना जीवन महान बनता है सेवा की भावना से, सेवा की भावना से। कि हम सब सेवक है, हम सब कौन है? सेवक है। हम जो बोलते हैं आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से क्या है? प्रेम है। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू, यदि आपको देश से कुछ प्रेम है, अपनापन है, उस देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपना देश है, अपनापन आना चाहिए। ये कब आएगा? जब हम भगवान को भी मानेंगे। Without accepting God, without believing God, this feeling won't come naturally, won't come naturally. हम जो बोलते हैं all Indians are my brothers and sisters, सभी भाई बहन हैं, ये भावना नहीं आएगा जब तक हम एक भगवान को नहीं मानेंगे।
जो सबका माता पिता है, केवल मनुष्यों का नहीं, सभी जीवों का माता पिता। और जो बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। सुना है आपने? स्कूल प्रेयर बहुत जगह बोलते हैं। तो भगवान सबके माता पिता है। जो संस्कृत में बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। सिंपल वर्ड्स, बट यू थिंक अबाउट दिस कि अपना संबंध किसके साथ है? हम सबका संबंध भगवान के साथ है। दैट अंडरस्टैंडिंग विल गिव सो मच पॉजिटिविटी, सो मच कॉन्फिडेंस, so much knowledge, so much intelligence that you can do the best in your work, studies, in life, and be satisfied, be happy all time. The biggest achievement of life, सबसे बड़ा यश, जीवन का सबसे बड़ा यश क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन लाना नहीं होता है, हाईएस्ट परसेंटेज नहीं होता है। जीवन का सबसे बड़ा यश हम जिस स्थिति में हैं, हम जहाँ हैं वहाँ जीवन का समाधान अनुभव लेना, जीवन का सुख पाना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। थिंक अबाउट दिस। क्योंकि केवल पोजीशन, मार्क्स, केवल ओनली मार्क्स मिलता अच्छी बात है, बट ओनली मार्क्स, ओनली पोजीशन, ओनली हाई पोस्ट, बिग पैकेज, बिग पेमेंट विल नॉट गिव यू satisfaction of the heart, fulfillment of the heart. That comes from the understanding that we all are servants of the Supreme Lord. हम भगवान के सेवक हैं। जो बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक बोलते हो, भगवान है। इसलिए जॉब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्विस बोलते हैं, है ना? जॉब को क्या बोलते हैं? सर्विस। कि अपनी सेवा है, अपना जॉब अपनी सेवा है। किसके लिए? भगवान के लिए। जो भगवान जीवन दिए हैं, ये जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन या सबको जो जीवन मिला है, ये कोई कंपनी ने नहीं बनाई है, कोई इंजीनियर साइंटिस्ट लोग नहीं बनाए हैं। ये जीवन भगवान दिए हैं। दुनिया जो बनाए हैं कोई कंपनी नहीं बनाई है। ये दुनिया, कुछ लोग तो बोलते हैं, समझते हैं ऐसा अज्ञान की वश, दुनिया अपने आप बन गई है। अपने आप बनाने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा एक अज्ञान है, बड़ा एक गलत सोच है। अपने आप बन गई बाय चांस, बिग बैंग, बड़ा विस्फोट हुआ होगा, कुछ तो बन गया होगा। ऐसे विस्फोट से कुछ बनता नहीं है। इफ यू सी आवर वैदिक साइंस, वेदास, दे टेल अबाउट सो मेनी डिटेल्स एग्जैक्टली दुनिया कब बनी, दुनिया कौन बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ये सवाल का जवाब आज के साइंटिस्ट लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो केवल अपनी मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जो असंभव है कि ना दुनिया कब बनी, कैसे बनी समझना। लेकिन वेदों में, वैदिक साइंस में ये स्पष्ट बताया गया है, समय भी बताया गया है, कब बनी, कैसे बनी, सो मेनी डिटेल्स। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि आज लोग ना कभी देखे हैं, ना कभी पढ़े, ना कभी सुने हैं। वो सोचते हैं जो मॉडर्न साइंस अपने सिलेबस में है, जो ब्रिटिश लोगों ने दिया हमको, बस वही साइंस है। जो अपने वेद है, भगवत गीता है, ये हिंदू माइथोलॉजी बुक्स है। ये जो शब्द है हिंदू माइथोलॉजी बुक्स, ये ब्रिटिश लोगों ने यूज़ किया पहली बार। क्यों यूज़ किया? जो अपनी ताकत है, जो अपनी श्रद्धा है, ये वैदिक साइंस में, वैदिक शास्त्रों में, वो तोड़ने के लिए, अपना श्रद्धा तोड़ने के लिए उन्होंने ये यूज़ किया वर्ड हिंदू माइथोलॉजी बुक्स। जो अपना इतिहास है, महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, उसको क्या बोल दिया? ये दंत कथा है, ये माइथोलॉजी बुक्स है। इससे क्या हुआ? हमें जो श्रद्धा थी भगवान में, वेदों में या शास्त्रों में, अध्यात्म में, वो कम हो गई। बहुत लोगों तो चला ही गया श्रद्धा। वो सोचते हैं मनुष्य कैसे आए, और डार्विन का थ्योरी हमने सुना, पढ़ा, बंदर से मनुष्य बना। ये इलॉजिकल है, ये इम्पॉसिबल है।
मनुष्य पहले से है। मानव समाज, मनुष्य समाज, मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, लॉर्ड ब्रह्मदेव के पहले पुत्र हैं मनु, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु से मनुष्य समाज आता है, मानव समाज आता है। ये नहीं कि बंदर से मनुष्य बना, ये तो उसकी कल्पना है, डार्विन थ्योरी, कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ होगा को हम ऐसे सत्य मानकर चलते हैं, जैसे कि ब्रह्मदेव नहीं है, देवी शारदा सरस्वती माता जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, शक्ति है, उन जिनके हाथों में वेद है, जो भगवान का गुण गाती है बिना बजाकर, ये हम सब कुछ भूल गए या समझ नहीं पाते। हाथ तो जोड़ते कभी उनके सामने, गणेश जी के सामने, माता सरस्वती के सामने, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि देवी शारदा जो है, सरस्वती माता, ये है अपने धाम में, ब्रह्मलोक में है वो ब्रह्मा जी के साथ। हमें विश्वास नहीं होता। क्यों? हमने ना कभी गीता पढ़ी, ना भगवत पढ़ा, ना कभी सुना, कोई श्रद्धा भी नहीं है। तो बच्चों, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि हमें थोड़ा सा यदि ज्ञान होगा कि हम सभी भगवान के हैं, और जो रियल साइंस है, जो मूल विज्ञान है, वो मानव निर्मित नहीं होता है, भगवान ने दिया होता है। क्योंकि आज मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस, उसका बेसिस क्या है? मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है मानव निरीक्षण, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। Human observation. They will observe the things with their senses, with their mind, with their eyes, and they will try to understand things and give some theories, some concepts. And that's why that has got defect. That has got defect, fault. The word research, they say human research, research. Their search will be always defective, faulty. That's why they go for research, and their search will never end to know the truth, because their basis is the limited senses, limited capacity of our intelligence. But the Vedic science is not given by any human being. Vedic science basis is the Supreme Lord, the all-knowing, all-powerful Supreme Lord. This is the basis of Vedas. Vedas were given by Lord Narayan first time to Lord Brahma to tell him, to guide him in his duty. What is to be done, how it is to be done. दुनिया कैसे बनानी है, सृष्टि कैसे बनानी है, इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले दिया वेदों में, वेद। तो बस इतना ही बोलना है मुझे कि यदि आप इतना समझ जाओगे कि हम जो है, अपना जीवन जो है, दुनिया जो बनी है, ये बाय चांस नहीं है, भगवान का प्लान है, भगवान की योजना है, और हम भगवान के हैं। दैट कनेक्शन विल गिव यू सो मच एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस एंड सो मच सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। दुनिया में सब कुछ बदलने वाला है, दुनिया भी बनती है और एक दिन नष्ट होती है, प्रलय होता है, लेकिन हम हमेशा जीना चाहते हैं। ये बॉडी भी जो है, जो बॉडी हमको मिली है, ये बॉडी भी जन्म से लेकर अब तक हमेशा बदलती आई है। आपको अनुभव है इसका? बचपन का बॉडी अलग था, LKG, UKG, या उसके पहले भी जब माँ की गोद में थे, वो बॉडी अलग था। आज की जो बॉडी है बदल गई है। आप बोलेंगे नहीं सर, बदली नहीं है, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? चेंजिंग, चेंज ही होता है, बॉडी बदलती है। मन तो हमेशा बदलता है, बुद्धि भी जो अपनी है कम ज़्यादा होती है, लेकिन हम जो है, हम कौन है? आज का बायोलॉजी केवल बॉडी के जो पार्ट्स है, ह्यूमन पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स, बस वही बायोलॉजी, उनका बायोलॉजी है। लेकिन इस बॉडी में, इस जीवन में मन है, बुद्धि है, ईगो है, अहंकार, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव भी है, जीव, आत्मा। आज का बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, MBBS कोर्स, MD कोर्स आत्मा के विषय में कुछ सोचता ही नहीं है, ना जानता है, ना मानता है। वो केवल बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं। नहीं, इस बॉडी में मन है, बुद्धि है, ईगो है,
और सबसे ऊपर आत्मा है। जब तक वो आत्मा बॉडी में है, जीव है, तो जीवन है। जिस समय जीव निकल गया बॉडी से, हम बोलते हैं अपने आजा आजी, दादा दादी चले गए। बॉडी सामने होती है, डेड बॉडी सामने होती है, हम बोलते हैं वो चले गए, हमको छोड़ के चले गए। हु लेफ्ट? कॉमन सेंस की बात समझने की कि द जीवा, आत्मा inside the body, who was maintaining the body, because of whom the body was functioning, has now gone for next journey. ये बेसिक कॉमन सेंस है। हम बोलते तो हैं मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, सब जगह बोर्ड लगता है मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, लेकिन जब बात आती है साइंस की समझने की तो बोलते हैं आत्मा किसने देखी है, भगवान किसने देखा है। कॉमन सेंस तो बोलती ही है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन जब विश्वास की बात आती है कि भगवान में विश्वास है क्या, वो नहीं होता है। किसने देखा है भगवान? जैसे कि भगवान ये आंखों से देखने की ना वस्तु है, मोबाइल जैसे नहीं, आत्मा भी जो है आंखों से दिखेगा नहीं, जैसे मन दिखता नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है, जैसे शब्द साउंड, यू कैन नॉट सी साउंड, नो नीड टू सी साउंड, नो नीड टू सी एयर, no need to see mind, but you can feel, you can experience that. In the same way, Atma, Bhagwan, even though by eyes you may not see, but by your heart you can experience them. That is the most important. Experience also is seeing. Experiencing is also seeing. अनुभव लेना भी क्या होता है? देखने के समान होता है। तो अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि if you want positivity, if you want confidence, if you want success, if you want happiness, satisfaction, peacefulness, no anxiety, then have some faith in our Supreme Lord. वो अपना है, भगवान अपने हैं। ये नहीं कि भगवान आपको काम पे लगाएंगे, नहीं। जैसे माता पिता होते हैं, they love us, they care us. In the same way, the Supreme Lord, the Supreme Father, the Supreme Mother loves us, cares about us. And He has given all the facility for happy life or good life. जीवन तो दिए हैं हमें सबको, सभी जीवों को, और जीवन के साथ साथ जीवन का जो आवश्यक सुविधा है, आवश्यकता है, हवा, वायु, जल, अन्न, देन लाइट, सनलाइट, इंटेलिजेंस, माइंड, सब कुछ भगवान दिए हैं। हम सोचते हैं बिना पैसे के कैसे जिएंगे। वी डोंट नीड मनी टू लिव। if you work if you do some good seva, some service, you will get all the things. Or if you use your intelligence, you will get all the facility to live a happy life. पैसा हो ना हो, आपका जीवन हो सकता है। मतलब मनी इज नॉट ए कॉज ऑफ लाइफ। कितना ये पशु है, पंछी है, एनिमल्स है, मनुष्य छोड़ के जितना समाज है, जितना जीव है, वो कहाँ एक पैसा कमाते हैं लगता है उनको, लेकिन जीवन जीते हैं। क्यों? उनको बुद्धि है जो भगवान दिए हैं कि जीवन कैसे जीना है, जीवन की जो आवश्यकता है वो कैसे पाना है। दैट इज द पॉइंट। ये मत सोचिए कि ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो कैसे सुख मिलेगा, बड़ा जॉब नहीं होगा तो कैसे। इफ़ यू हैव डिज़ायर टू सर्व, इफ़ यू हैव डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट, यू विल बी हैप्पी, यू विल गेट ऑल द थिंग्स along with money. We also get money without asking, without any expectation. When we are serving in society, we are getting much more than our needs and expectations. People give us without asking. We don't expect also, but people give us. Why? Last point, in giving we receive. That is a saying in English. In giving in giving good service, you will receive so much satisfaction, so much fulfillment, so much joy, and all your necessities will be given to you. So today, one day, I'm with you in campus. If you have some questions, some doubts, anything to say or ask, I will come for some time in your classes after breakfast,
and we'll have some interactions. I wish all the 10th class, 12th class boys, girls, all the best. That may God bless you and be happy, be satisfied. Now, no need to worry about your percentage and marks. Your duty is to study. Your duty is to study. How much you can study? As much as your capacity allows you. आपका जितना क्षमता है, जितना आपका बुद्धि चलता है, उतना पढ़ाई कीजिए. तुलना मत कीजिए. Don't compare with anybody. Oh, he is getting so much, I am not getting so much. No need to compare. You will be unhappy whole life. सबका क्षमता एक जैसा नहीं होता है, सबका बुद्धि एक जैसा नहीं होता है. यदि मैं सोचूं, ओ मैं साधु बन गया, मेरे कलीग IAS बन गया, मेरा कलीग बीटेक कितना बड़ा ऑफिसर बन गया, कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, आई विल बी अनहैप्पी. वो अपने हिसाब से जीता है, मैं अपने हिसाब से जिएंगे. You understand? Living our life our own way with our intelligence. That is the way to happy life. ऐसा नहीं है वो इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये ना बिजनेसमैन बना, ये गाड़ी लिया, ये बंगला बनाया, मुझे भी करना चाहिए. No need to think like that. Use your intelligence and be happy with yourself. Then you will be satisfied. Thank you all. And I once again thank our dear principal sir and all the teachers for giving me this opportunity to serve in some way. Thank you. Wonderful. Anybody want to